Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. My today topic is the living organism and their surroundings. My today topic is the living organism and their surroundings, class 6 science, chapter 7. इस चैप्टर में हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट क्लास है ताकि जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इस क्लास को समझ सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट माय चैप्टर। इंट्रोडक्शन। Life exists everywhere on our planet, the earth. We find life in snow-covered mountains and even in deep ocean. Define environment. Everything surrounding and affecting the life of an organism is called its environment. Components of environment. Components of environment are biotic component and abiotic component. Two components होते हैं जो environment को affect करते हैं, that is called biotic component and abiotic component. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं क्या होते हैं biotic component and abiotic component. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट. Biotic component are the living things in an ecosystem including plants, animals, human beings, microorganisms and their weights etc. Abiotic component. The abiotic component of an environment including non-living component present in an environment. Example: water, air, soil, sunlight, temperature etc. ओके जहाँ पे मुझे लगेगा कि हिंदी समझाने की ज़रूरत है और जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है उसको मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट ज़रूर करूँगी और समझाऊँगी भी. जो इजी है उसकी मैं नहीं समझा रही. ठीक है. What are the main groups of the biotic environment? The biotic component of an environment are divided into four main groups: producers, consumers, scavengers, decomposers. Producers, organisms that manufacture their own food are called producers. ऐसे organism, ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम producers कहते हैं. Plants are called the producers as they make their own food with the help of photosynthesis. Plants जो हैं अपना खाना अपना भोजन खुद बनाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. नंबर सेकंड है कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट कंज्यूम्स फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो organism that cannot manufacture their own food but consume food prepared by green plant. जो green plants food बनाते हैं उसको वो एनिमल्स खाते हैं, उन एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं. ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. स्कैवेंजर्स, ऑर्गेनिज्म दैट फीड organisms that feed on the dead remains of the animals that are killed by predators are called scavengers. Kites and vultures are some examples of scavengers. Fourth number है हमारा decomposers. Organisms like bacteria and fungi decompose dead remains of plants and animals to obtain their food and are called decomposers. Decomposers के examples अगर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में तो fungi and bacteria are called decomposers. Okay students, what is adaptation? Adaptation means अनुकूलन. Adaptations की हिंदी क्या है? अनुकूलन. मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ अभी इस क्वेश्चन को. What is adaptation? Adaptation यानी favorable features present in plants and animals that help them to survive in a particular type of habitat are known as adaptation. किसी favorable features present in plants and animals that help them to survive in a particular type of habitat are known as adaptation. What features help organism to adapt in a particular habitat? Organism adapt in a particular
habitat by change in their body shape, organs, color, size, behavior and location. ठीक है स्टूडेंट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टेशन. एडेप्टेशन अनुकूलन के कुछ एग्जांपल्स दीजिए. लोटस प्लांट इज वेल सुटेटेड टू एक्वेटिक हैबिटेट. लोटस प्लांट जो होता है, लोटस का लोटस यानी कमल का जो प्लांट होता है, इज वेल सुटेटेड एंड इक्वेटिक हैबिटेट. इक्वेटिक हैबिटेट यानी जलीय वातावरण में रहने के अनुकूल होता है जो लोटस का प्लांट होता है. कैमल इज वेल एडजस्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट. जो कैमल होता है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने के लिए वेल एडजस्टेड होता है. ठीक है. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट की डेफिनेशन क्या होगी? डिफाइन टर्म हैबिटेट. ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए हैबिटेट क्या होता है. वट इज हैबिटेट? हैबिटेट की हिंदी होती है प्राकृतिक वास. वट इज हैबिटेट? डिफाइंड टर्म हैबिटेट. विच प्लेस कॉल्ड हैबिटेट? द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. What does habitat provide? A habitat provides food, water, air, light, shelter and a place for breeding to the plants and the animals living in it. Okay students, give some examples of habitat. Give some examples of habitat. The habitat of the cactus plant is the desert. जो cactus plant है उसका जो habitat है वो कौन सा है? desert है. The habitat of the camel is the desert. Camel is adapted to survive on very little water for long periods of time. जो कैमल है यानी ऊंट जो है वो डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूलित है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक पानी पिए बिना रह सकता है. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम सबका हैबिटेट आगे रीडिंग करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट. ये लिस्ट आपकी बुक में से है. ठीक है. लोटस के लिए हैबिटेट कौन सा है? पॉन्ड. कोकोनट ट्री के लिए कोस्टल लोलैंड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स. रोज प्लांट के लिए सनी वेल ड्रेन सॉइल. ड्रेन सॉइल मतलब सूखी हुई मिट्टी. फिश के लिए कौन सा है हैबिटेट? कोरल रीफ्स एंड रिवर्स. टाइगर के लिए ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट. स्क्वायरल के लिए मैच्योर फॉरेस्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, what are the major types of habitat? What are the major types of habitat? What are the main types of habitat? The main types of habitat are terrestrial habitat and aquatic habitat. डिफाइन टर्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब स्थलीय आवास. ओके स्टूडेंट्स, टेरा इन लैटिन मीन्स ग्राउंड. स्टूडेंट्स मेरे नोट्स इतने इजी हैं, अगर आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, 2 बार रीडिंग, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, आप पेपर में इजीली लिख के आ सकते हैं. टेरा इन लैटिन मीन्स ग्राउंड. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ओके स्टूडेंट्स, जो जीव स्थल में रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते, मतलब उन एनिमल ऐसे ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो उनका प्राकृतिक आवास होता है, रहने की जगह होती है, उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इंक्लूड प्लेसेस इंक्लूड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. कौन कौन से प्लेसेस इंक्लूड होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में? डेजर्ट हैबिटेट, माउंटेन हैबिटेट, पोलर रीजन हैबिटेट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ेंगे, हमें अब एडेप्टेशंस पढ़नी है. ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. आपसे किसी की भी एडेप्टेशंस पूछ ली जाएंगी कि डेजर्ट एडेप्टेशंस कौन सी होती हैं, माउंटेन एडेप्टेशंस कौन सी होती है. आप इनको रीडिंग करेंगे तभी आपको लर्न हो जाएगा, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है. डेजर्ट्स के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में? सबसे पहले हम प्लांट्स पढ़ेंगे. कैक्टी
cacti यानी cactus commonly grow in desert. This plant has the following adaptive features. It has a very long root that goes deep into the soil to absorb water. Leaves are modified into spines to prevent water loss. Stem is green, fleshy to store water and prepare food. Roots are very long to absorb underground water. Stem has waxy coating. एनिमल्स में कौन सा आता है? डेजर्ट स्नेक एंड रैट्स लिव इन डीप बोरोस that have a cool and moist environment during daytime. Camel hump to store water and fat. Camel big eyelashes. Camel के पास big eyelashes होती हैं to protect eyes from sand. जैसे कई बार रेत उड़ती है तो वो उसकी आइज़ के अंदर नहीं जाती. Padded feet to walk on hot sand. उनके जो feet होते हैं वो padded होते हैं ताकि वो गर्म रेत पर चल सके. Camel drink a large quantity of water and can stay water फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कैमल जो होता है एक बार में बहुत सारा पानी पी के अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिना पानी के रह सकता है. कैमल एक्सक्रीट्स अ वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन एंड इट्स डंग इट्स ड्राई एंड डज नॉट स्वेट. कैमल को ज़्यादा पसीना नहीं आता और वो जो है यूरिन में बहुत कम पानी एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है. एंड देयर डंग इज़ ड्राई. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा माउंटेन्स एडेप्टेशन. ये सारी एडेप्टेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती है. माउंटेन एडेप्टेशन कर लेते हैं अब हम. Trees like pine usually grow on the sloping sides of the mountains. Trees have sloping branches to slide off snow and rain water. Trees की जो है sloping branches होती हैं ताकि जो अगर कभी स्नोफॉल होती हैं तो वो फिसल के नीचे गिर जाता है. and rain water. Leaves are needle like structure to prevent water loss. जो वहाँ की उनकी जो leaves होती हैं वो needle like होती हैं ताकि उनमें से water loss ना हो सके. Leaves have a thick waxy coating. Leaves के ऊपर thick waxy coating होती है. Animals have thick fur to protect from cold. Yak, bears, mountain goats and snow leopard. ठीक है, उनका थिक फर होता है ताकि वो सर्दी से बच सके. सम एनिमल्स लाइक बियर्स गो इनटू हाइबरनेशन. जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं. सम एनिमल्स बर्ड्स लाइक स्वेलो माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर. ये जो बर्ड्स होते हैं ज़्यादा ठंड में जो गर्म स्थान होते हैं वहाँ चले जाते हैं ज़्यादा ठंड से बचने के लिए. अगर हाइबरनेशन आपको वैसे पता होना चाहिए क्या होता है. शीत निद्रा. हाइबरनेशन का मीनिंग होता है शीत निद्रा. दैट सम एनिमल्स गो टू स्लीप फॉर द एंटायर विंटर टू स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिज्म बिकॉज फूड इज़ नॉट एबंडेंट. प्रचुर मात्रा में फूड नहीं होता एक अमाउंट में, इसीलिए वो शीत निद्रा में चले जाते हैं. ये सारा प्रोसेस गॉड ने बनाया हुआ है, इंसान के हाथ की बात नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारा पोलर रीजन एडेप्टेशन. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा पोलर रीजन एडेप्टेशन. प्लांट्स एनिमल्स conical shape leaves and branches to help them adapt to their environment. Thin leaves. ठीक है. एनिमल्स में है polar bears live in polar region. They have very thick fur on their skin with a layer of fat under it to keep them warm. They have padded feet to be able to walk on snow. जो उनके जो फीट्स होते हैं वो पैडेड होते हैं ताकि वो इजीली स्नो पर वॉक कर सके. कैमोफ्लेज विद वाइट स्किन. पेंगुइन्स है वाटर प्रूफ फेदर्स. पेंगुइन्स के पास PEN, ये थोड़ा समझ नहीं आ रही स्पेलिंग, PENGUINS. लास्ट पॉइंट में देखिए PENGUINS. पेंगुइन्स हैव वाटर प्रूफ फेदर्स.
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे जा रहे हैं हम, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एडेप्टेशन। Grasses growing in this habitat have flexible stalks which do not bend or break in windy conditions. They have strong roots that hold the soil firmly. Animals में आ जाएगा carnivores animals like lions and tigers live in forests. They get their food by killing animals like deer. Lions have eyes in front that help them see their prey from a great distance. They are able to run very fast, which allows them to catch their prey. फिर है हमारा नेक्स्ट इक्वेटिक हैबिटेट। ये जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है, अब है इक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जलीय आवास, जल में कैसे रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब हमारा इक्वेटिक हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे पहले ना इसका नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफाइन टर्म इक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, पहले डिफरेंस जो हम वो ये हमने जो कर रखा है ना इक्वेटिक हैबिटेट के एडेप्टेशन, इसका नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफाइन टर्म इक्वेटिक हैबिटेट, एक्वा मीन्स वाटर और ऑर्गेनिज्म लाइक aqua means water, organism like sharks, fish, seaweed and lotus plants that live in lakes, ponds, rivers and oceans are called aquatic organism and their habitat are called aquatic habitat. Aquatic habitat में कैसे adaptations होते हैं plants and animals में, वो हम कर लेते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। These plants float freely on water, lotus, water lily, etc. In these plants, leaves are large and flat. Leaves are covered with waxy coating. Their body is streamlined. Animals की जो body होती है कैसी होती है? Streamlined. The skin is covered with waterproof scales. Fishes have gills that help in breathing in water. Fishes swim with the help of fins. Define term aquatic habitat, ये हमने पहले कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, एडेप्टेशन इन फ्रॉग्स, ये भी आ सकता है पेपर में। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। फ्रॉग्स कैन स्टे इनसाइड द पॉन्ड वाटर एंड मूव ऑन लैंड। दे हैव वेब्ड फीट that help them swim in water. Their skin is always moist with help in breathing through their skin. ठीक है, अगर ये तो लॉन्ग में हो गया ऊपर वाला आंसर। अगर आपको वेरी शॉर्ट में आंसर याद करना है तो नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो याद कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। फ्रॉग्स हैव मॉइस्ट स्किन, लॉन्ग बैक लेग्स, वेब्ड फीट। ओके, ये जो नीचे वाला आंसर है वो वेरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन टर्म एक्लाइमेटाइजेशन। डिफाइन टर्म एक्लाइमेटाइजेशन, ये मैं आपको ना थोड़ा सा तोड़ के पढ़ के बता रही हूँ। एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है, पढ़ना सिखा रही हूँ आपको कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना यानी अभ्यास होना। इसका मैं मीनिंग आपको बताती हूँ। हैव यू एवर विजिटेड एनी हिल स्टेशन? आपको पता है जब आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी पहाड़ों पे जाते हैं, तो कुछ दिन तक आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, आपको वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, मतलब वॉमिट वगैरह आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप कुछ दिन उस एनवायरनमेंट में रह लेते हैं तो आप उसके अनुकूल हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है उसके अनुकूल खुद को ढाल लेती है
मतलब उसके अनुकूल अपने आप को खुद को बना लेती है, ठीक है। द चेंज दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लाइमेटाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोनाउंस करना सिखाया था इसको, ठीक है। डिफाइन टर्म कैमोफ्लेज। Define term camouflage. This ability to blend into their surroundings because of their skin color is known as camouflage. Camouflage का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिरगिट। गिरगिट आपने देखा होगा खुद का कलर चेंज कर लेता है परिस्थिति के अनुकूल। जब वो ग्रीन प्लांट्स पे जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, या आपने देखा होगा ब्राउन कलर का जब पेड़ की स्किन पे वो जाता है तो खुद को ब्राउन कलर का कर लेता है। कैमोफ्लेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गिरगिट। द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर इज नोन एज कैमोफ्लेज। क्वेश्चन ये कैमल वाला हमने आगे कर लिया था, लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैमल हैज़ सेवरल एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन डेजर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आप ये कैमल की तो एडेप्टेशंस लर्न कर ही लेना, ये ज़रूर आएंगी पेपर में। लॉन्ग आईलैशेस होती है ताकि जो रेत है उड़ के उनकी आँखों में ना जाए। नॉस्ट्रल्स होती है, फैट स्टोर्ड इन द हम, ठीक है। लॉन्ग लेग्स होती है, ब्रॉड फीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये भी एक बार रीड कर लीजिएगा आप, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे। फोटोसिंथेसिस सबको आता होगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड क्लोरोफिल एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड फूड इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। इसका डायग्राम आप बनाना सीख लेना, आता होगा आप सबको। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ फूड चेन। द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज़ कॉल्ड फूड चेन। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।